हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं लाइट साउंड ट्रिक्स। दोस्तों, आज के इस पूरी वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंटीनास की। एंटीना डिज़ाइन आपको कैसे कंबाइनर्स मिल जाते हैं और स्नाइजर का ये एंटीना आप एक्टिव एंटीना में कंबाइनर से कनेक्ट कर सकते हैं और आपको ये वायरलेस माइक्रोफोन में मिल जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा और मेरे चैनल को भी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस तरह के वीडियोस देखने के लिए। एंटेना। जब मैं एंटेना बोलता हूं तो क्या होता है? एंटेना इज नथिंग बट backbone of all the communication system, all the wireless communication system. Antenna is nothing but the backbone. Without antenna, you can't do anything here. Okay. Types of antennas. Let's understand this. Types of antenna. A lot of antennas are there in practice. Here, I will have to start my video because I have to show all the antennas to you. So, let me take the example of this antenna. Okay. You see this antenna, and whenever you buy any wireless product, you get some sort of this antenna, simple antenna, one rod. This is a whip antenna, which is directly connected to the receiver. Okay. Why directly connected to the receiver? Because you also need to have ground plane. ग्राउंड भी चाहिए आपको। किसी भी एंटीना के साथ हमने पहले बोला था, आपको एक ग्राउंड चाहिए होता है। ट्रांसमीटर में द बॉडी एक्ट्स एज द ग्राउंड, बॉडी ग्राउंड होता है, बट रिसीवर में इस एंटीना के साथ आपको ग्राउंड चाहिए तो कहां से मिलता है? योर रिसीवर्स मेटेलिक बॉडी इज द ग्राउंड, एंड देन दिस परफॉर्म्स टू द एक्सपेक्टेशंस। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग अक्सर पूछते हैं कि व्हाई कांट वी माउंट इट आउटसाइड, व्हाई टू बाय एक्सटर्नल एंटेनास एंड कांट वी माउंट इट आउटसाइड? We can connect a cable, maybe 2-3 meter 5 meter cable, and mount it outside. No, then you lose the ground plane. You don't have ground plane, so the efficiency will drop to 0% or 1% or something like that. You cannot mount this antenna outside. Okay, so you need to have ground plane. So if this is directly connected to the receiver, you have to operate 1 or 2 channels and kept somewhere right in the line of sight with the transmitter. बिल्कुल पास में काम कर रहे हैं, maybe this can work. Not for professional things. Professional के लिए क्या होता है? You just do sound check. Hello, hello, everything is working. Receiver, transmitter, सब कुछ ठीक है. You take out this antenna, throw it in a dustbin, और इसको कहीं साइड में आप रख दो, and start using external antennas. Okay. Anyway, let's talk about this whip antenna. इसका polar pattern क्या होता है? जो coverage style होता है, coverage area होता है, that is like a donut shape. This is like a donut shape or toroid shape. ठीक है, ये पूरा spherical नहीं होता है. From here you have less sensitivity, from down there you have less sensitivity. So चारों तरफ से आपको बिल्कुल ये donut shape में इसका होता है. इसकी परफॉर्मेंस क्वाइट ऑफन -3 dB के करीब होती है, मतलब half of the power is lost. -3 dB, just keep in mind. Okay, so you lose on the power. Next is external antenna or the omnidirectional antenna, which is this one. Okay, so when I say okay, this one is a ground plane antenna, बोलते हैं कैसे ground plane है? इसमें भी तो आप केबल उसको बाहर लगा रहे हैं and you just put a cable here. So if you look closely on this pattern, you will find that okay, one side there is radiator, another side there is a ground plane. So ground. So this is connected to both. So this antenna, the complete entire antenna acts as the ground plane. And this is a wideband antenna. This works from right from 430 megahertz to 960 megahertz. So किसी भी frequency के लिए ये tuned antenna है, perfectly tuned antenna है. You can induce all the frequencies here. But the problem is that when you have a wideband antenna and you have an omnidirectional antenna, the problem is that the signal, the desired signal, जो आपको signal चाहिए वो, plus जो interference चारों तरफ से आ रही है वो, both are at the same level. दोनों same level पे है, तो आपको दोनों ही मिलता है इस पे. So this is the worry. लोग कहते हैं इसको indoor use करना चाहिए. Good, indoor use करेंगे.
because of multiple path reflections, and then you have diversity antenna so that you can take care of that those signals. अगर एक पे सिग्नल नहीं है तो दूसरे पे मिलता है, so लोग बोलते हैं multiple reflections है, so use that antenna. But I am not a very good fan of this antenna. Even indoors, I prefer to use directional antenna due to certain reasons. Multi-path reflection is also a culprit for all the communications. So उसको avoid करने के लिए क्या करते हैं मैं बताता हूँ. So for that reason, we have ये भी toroid pattern, इसका भी जो पिकअप पैटर्न होता है that is toroid pattern. पैसिव और एक्टिव बताया गया, they come as either passive or active antennas. First of all, I would like to clear this. Active antenna by definition cannot exist. ऐसा नहीं होता है by definition. You don't have an active antenna. Active antenna होता नहीं, हम उसको active बना देते हैं by mounting some sort of amplifier or booster. यहाँ पे हम mount कर देते हैं so that after you get the power, आपके पास booster है, वो boost करके आपको power देता है. And for that to operate that booster, you have to provide DC power to that booster. So इसलिए हम उसको active बोलते हैं. Otherwise there is no antenna called active antenna. Okay. So इस antenna में क्या होता है देखते हैं. This works like एक कद्दू से, something like that. Although the area is vast, here I am not showing that much of area on my PPT. So area is vast. And the angle of coverage might be somewhere between 90 to 120 degrees. So इसका coverage area अगर मैं ऐसे करता हूँ तो इसका coverage area कुछ इस तरह से होगा 120 degrees. And from back there is rejection by 10 dB. So and the front it's almost 4 dB gain. Why? Because the energy is energy क्या होता है, energy को हम लोग एक डायरेक्शन में बिल्कुल कंसंट्रेट करते हैं. सो दैट इज द रीजन जो ओमनी पे हमें पावर मिलनी चाहिए उससे 4 dB ज्यादा मिलती है, डबल, ऑलमोस्ट डबल. सो उस पावर को ये बूस्ट करता है एंटीना अपने आप में. दिस इज लाइक यागी एंटीना, जैसे हमारे पुराने टीवी वगैरह में हुआ करता था. द सेम एंटीना. इफ यू लुक एट दिस एंटीना क्लोजली, आपको मिलेगा यहाँ पे डाइपोल्स बने हुए हैं एंड अदर साइड देयर इज ग्राउंड प्लेन. सो डाइपोल एंड ग्राउंड प्लेन दोनों होता है इसके अंदर. अगेन so वो डाइपोल कैसे बने होते हैं? You have seen the frequencies. At different frequencies you have different length of antennas. So what we do, for lower frequency the length of antenna will be more, for higher frequencies shorter. So 900 megahertz के लिए हमने यहाँ पे डाइपोल लगा रखे हैं. For 800 megahertz यहाँ है 700, then your 600, then your 500, the largest one 400. So something like that. तो इस तरह से इसका डिवीजन होता है. And then after doing that, this acts as a perfectly tuned antenna. You cannot say perfectly, but yes, you can use it for any frequency between 450 to 960 megahertz, which is shown here. Yeah. Just in case if you don't use any booster, which is culprit, we'll talk about that later stage. So in that case, आप सिर्फ passive antenna use करके and you can have a ultimate results. बहुत अच्छा इससे मिलता है. Without using any booster, maybe 5 meter length of cable, maximum 10 meter, go up to 10 meter of RG58 with these antennas. Excellent performance. So फ्रंट में 4 dB का गेन होता है एंड -10 dB रिजेक्शन होता है पीछे से. This is preferred for outdoor use due to rejection of unwanted signal from the rear. Not only from the rear but also from the side. Side से भी इसकी sensitivity थोड़ी कम होती है. Sensitivity lowers down. पीछे से भी नहीं मिलता इसको, रिजेक्शन होता है 10 dB का. And from sides also we have more than 4 dB of rejection. Front 4 dB of gain. So this is how this antenna works. omnidirectional एंटीना कुछ प्लेसमेंट के बारे में बताते हैं. इसके बारे में हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं, जिन्होंने भी मेरा सेशन ज्वाइन किया होगा. इफ यू यूज these two antenna on two sides of the stage, it's not a good idea. Be it indoor, be it outdoor, don't do that. Rather you can use directional antenna. अगर ऐसा करते हैं तो interference and the wanted signal both are at the same level, and that is the problem
why you have a lot of disturbances sometimes. Instead, you can use this antenna when interference and the wanted signal both are at different levels, and interference is always at lower level because a lot of rejection is happening there. So directional antenna, how to position those antennas? The best way is to like this. लेकिन कभी कभी क्या होता है आपको वेन्यू पे you don't have that much of space. You have your console and you just put two antennas, two rods there, mount antennas like this, and you keep on going. First of all, do not do like that. Even if you are mounting your antennas like this is good. Anything more than quarter wavelength is good. Anything more than quarter wavelength, it's good to have even with external antennas, but we always prefer to have them as wide as possible. As wide as possible. Okay. So what would be the distance between two antennas? Anything greater than quarter wavelength. In practice, right from 1 meter to 40-50 meter, anything which falls in the range of that microphone. That can be anything. Never ever put or mount your antenna just in front of your consoles. कंसोल से अगर ये आदत है तो get rid of that habit. कंसोल से थोड़ा दूर, a little bit, maybe 1 meter away, both the antennas, 1 and 2 meter away. So if you have a restriction on the space, you have a space constraint environment, go with this scenario. Never ever mount the antennas right near the console or just next to console or next to your racks. क्या होता है? You have a lot of equipment there. Sometimes you have amplifier. Your console itself is generating a lot of digital spikes, a lot of problems, a lot of harmonics, and they keep on disturbing the antenna. So rather than looking at the main signal from the stage, this antenna keeps on looking at the disturbing frequencies. जो कंसोल से निकलती है वो फ्रीक्वेंसी जिसको मिलते रहते हैं, फिर आपको वो नॉइज देना शुरू करता है. फिर आप क्या बोलते हैं? You call me or anybody in my team and say, okay, we switch up the microphone and suddenly there is a noise burst. What is the reason behind that? So reason is that antenna placement or the noise floor at the venue. यानी पोजीशन ऑफ एंटेना कैसे होने चाहिए? स्टेज के दोनों तरफ डालें, नहीं डाल सकते हैं, और खास करके एट द बैक. कभी भी क्या होता है, योर टैलेंट, आपका टैलेंट जो होता है वो कभी कभी मूव कर जाता है आगे, पब्लिक पे चला जाता है, बहुत एक्साइटेड होते हैं वो लोग. तो आप अगर पीछे डालते हैं तो वहां पे क्या होता है, आपको टैलेंट को दूर तक कैच करने में आसानी होती है. समटाइम्स देयर इज एलईडी वॉल एट द बैक, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. सो इन दैट वे अगर ये फैशन में एंटीना डाल रहे हैं तो इसको मिड ऑफ द स्टेज भी ला सकते हैं एंड फोकस लाइक दिस. ऐसे ही डायगोनली इसको फोकस कर देंगे, इट्स गुड टू गो. अगर एक साइड में है तो डेफिनेटली ट्राई एज मच पॉसिबल टू कम लोअर साइड ऑन दिस साइड. मे बी एक एंटीना यहाँ, अगर एक साइड में यहाँ पे आपका कंसोल है तो मे बी एक एंटीना यहाँ, एक एंटीना यहाँ, या एक एंटीना यहाँ, थोड़ा दूर रख सकते हैं. इसकी डायरेक्शन ऐसी ही रखनी है हमेशा. सो आप स्टेज के अगर बहुत पास हैं, यहां से रेंज लेनी 20-30 मीटर बहुत आसान है. अगर आप एंटीना को यहाँ पे उल्टा भी कर देंगे 10 dB रिजेक्शन पे भी, still you have a lot of signal. But to be on safer side, keep it like this and like this. डायरेक्शन यही होनी चाहिए in case you are here. So हर जगह लिबर्टी नहीं मिलती है. Accordingly, you can optimize the antenna position. Okay. Position should always be greater than 2 meter. जब मैं 2 मीटर बोलता हूं तो इसका मतलब है कि नॉर्मल ह्यूमन हाइट जो होती है वो 2 मीटर होती है. तो स्टेज से 2 मीटर ऊपर, नॉट योर कंसोल के ऊपर 2 मीटर. स्टेज अगर 2 मीटर का होगा तो फिर स्टेज के बराबर में आ जाएगा. देन यू हैव टू गो 4 मीटर और 5 मीटर. तो स्टेज से 2 मीटर ऊपर, सो दैट इन बिटवीन कोई ना आए. और ट्रांसमीटर की जो आंखें होती हैं, ट्रांसमीटर की आंखें क्या है? दिस एंटेना. दिस शुड बी विजिबल टू द रिसीविंग एंटीना. जो आपकी रिसीवर एंटीना की आंखें हैं वो क्या है? रिसीविंग एंटीना. वो विजिबल होना चाहिए. तो इसके लिए हमेशा इसको हाइट पे माउंट करते हैं. इससे क्या होता है, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं. देन
we talk about the polarization. Polarization plays an important role. यहाँ पे मैं limited एक environment में limited resources के साथ काम कर रहा हूँ. Because of the this my home office, सब कुछ मैंने यहीं लगा रखा है और मैं डिस्टेंस आपको ज़्यादा मैं कैप्चर नहीं कर सकता यहाँ पे. सो दैट इज द रीजन. नहीं तो मैं इसकी वर्किंग भी आपको दिखा सकता था. हाउ पोलराइजेशन plays an important role. This room is, this has walls and there is a lot of reflection happening, immediate reflections. So we will not be able to understand कैसे ये polarization effect होता है. इसको मैं दिखा नहीं पाऊंगा यहाँ पे practically. Because of the reason मैंने कहा internal reflections बहुत ज़्यादा हो रहे हैं. तो वरना मैं आपको दिखा सकता था. इसको हम पीपीटी पे समझते हैं, विजुअलाइजेशन में समझते हैं. होता क्या है, अगर आपका ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना दोनों सेम डायरेक्शन में है या सेम प्लेन में है, 100% एनर्जी ट्रांसफर होता है. जितनी भी एनर्जी पहुंचे, ट्रांसमिट हुआ, पहुंचा, पर जितना पहुंचा एटलीस्ट वो तो पहुंचे. अगर ये एंटीना ऐसे हो जाए या ऐसे हो जाए तो क्या होगा? जितना पहुंच रहा है उसका भी 90% लॉस. ठीक है, कैसे बोलते हैं इसको? अगर ये एंटीना है तो ऑलमोस्ट, अगर 90 डिग्री ऑफसेट करते हैं, 90 डिग्री, तो उसमें 20 डीबी सिग्नल स्ट्रेंथ चला जाता है. बहुत ज्यादा लॉस है, अप टू 90%. तो एक तो पावर कम मिल रही है, दूसरा पोलराइजेशन इफेक्ट में इसका हम लॉस कर रहे हैं. दैट इज, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम एंटीना सही से माउंट नहीं कर रहे हैं. तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर आपके पास दो डायरेक्शनल एंटीना ही है और सर्कुलरली पोलराइज्ड एंटीना नहीं है, तो आप हो सकता है इसको ऐसे माउंट करेंगे साइड पे, मे बी 45 डिग्री, सो दैट आप देख सकते हैं कि हर एक 90 डिग्री पे पैटर्न चेंज हो रहा है. यानी कि पोलराइजेशन के लिए 45 डिग्री का ऑफसेट आ रहा है हर जगह. 45 डीबी का मतलब सिर्फ 3 डीबी सिग्नल स्ट्रेंथ लॉस होता है. और 3 डीबी यू कैन मैनेज, आप ऑलरेडी मैनेज कर रहे हैं डायरेक्शनल एंटीना यूज करके. सो अच्छा होता है कि ऐसे करें. आपने कभी भी देखा होगा वायरलेस माइक्रोफोन के पीछे जो एंटीनाज लगे होते हैं, जब आप उसकी इमेजेस देखेंगे तो वो ऐसे करके दिखा रहे होते हैं, ऐसे होते हैं. सो उसका मतलब ये है कि 45 डिग्री पे रखने से पोलराइजेशन में जो होता है ना, सीधा ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है. कभी भी रखना है तो कोई भी एंटीना ऐसे रखें, you will get the best results. Or better to use circularly polarized antenna. Because of the reason circularly polarized antenna में क्या होता है, RF it keep on changing. RF बिल्कुल straight कभी नहीं. इसका जो इलेक्ट्रिकल पैटर्न है एंड मैग्नेटिक, दे कीप ऑन, यू नो. सो अकॉर्डिंगली अगर आपने एंटीना को हेलिकल बना दिया, उसकी रिसेप्शन पैटर्न को हेलिकल बना दिया इनसाइड, ऐसे ऐसे ऐसे, तो क्या करेगा? फ्रीक्वेंसी कोई भी हो, तरीका कोई भी हो आने का, सिग्नल किसी भी तरीके से आ रहा हो, वो उसको रिसीव करेगा 100%. सो दिस इज हाउ दिस एंटीना वर्क्स. और इसकी गेन जो होती है, ये एंटीना आप देख सकते हो यहाँ पे है, इसकी गेन होती है तकरीबन 6 to 9 dB. समटाइम्स यू कैन, इट कैन गो इवन बियॉन्ड दैट, 10-11 dB भी जाती है. एक्सीलेंट रियर रिजेक्शन, पीछे से इसकी बहुत रिजेक्शन होता है. सो अनवांटेड नॉइज को भी ये खत्म करेगा और रिजेक्शन करेगा. एंड मेन सिग्नल जो जो डिजायर्ड सिग्नल है, जो आपको चाहिए सिग्नल, उसके लिए ये परफेक्ट गेन देता है. इसको बेसिकली इन ईयर मॉनिटर में तो 100% मैंडेटरी बनाना है कि इसको यूज ही करना है. इन ईयर मॉनिटर में यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज सिग्नल. आपको इन ईयर मॉनिटर के लिए कभी भी सिग्नल लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. उसमें आपको सिग्नल चाहिए. अगर आप 100 मिली वॉट भी ट्रांसमिट कर रहे हैं या 20 dBm, 20 dBm इज 100 मिली वॉट, तो अगर उतना भी ट्रांसमिट आप कर रहे हैं तो आप चाहेंगे कि केबल के अंदर कम से कम लॉस हो. तभी केबल में हम बहुत छोटी केबल यूज करते हैं इन ईयर मॉनिटर्स में जनरली, सो दैट केबल में कम लॉस हो. यहां से आपको पैसिव गेन मिल जाता है 6 to 8 dB का, 6 to 9 dB का, डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी, ये वेरी भी करता है. सो जो गेन मिलता है वो और परफेक्ट होता है. अगर आप यहाँ पे डायरेक्शनल एंटीना यूज करेंगे तो क्या होगा? आपको गेन उतना नहीं मिलता, कवरेज मिलता है पर गेन इतना नहीं मिलता है. विद हेलिकल एंटीना आप फोकस कर देते हैं उस गेन को, बिल्कुल जैसे लेजर बीम होती है ऐसे आप स्टेज पे ऐसे फोकस करते हैं उसको. डायरेक्शनल एंटीना से आप वाइड पैटर्न बनाते हैं.
और उसकी गेन भी 4 dB होती है। सो इन ईयर के लिए हमेशा आपको ये चाहिए। इवन माइक्रोफोन के लिए बहुत अच्छा एंटेना है, आपको कोई बूस्टर लगाने की जरूरत नहीं है। 6 to 7 dB वो ऐसे ही ऐड कर देता है वैल्यू। सो नेक्स्ट एक प्रैक्टिकल इफ आई कैन डू, लेट मी शो यू। एक छोटा सा प्रैक्टिकल मैं आपको दिखा देता हूँ विद एंटेनास। अगर मैं ओमनी और डायरेक्शनल एंटेना यूज करता हूँ तो कैसे इसमें पावर बढ़ जाता है। सो लेट मी डू दैट। लेट मी शेयर माय स्पेक्ट्रम एनालाइजर अगेन हियर। और आज का ये लास्ट शेयरिंग होगा स्पेक्ट्रम एनालाइजर का, क्योंकि आज और कोई डेमो नहीं है। जस्ट नेक्स्ट जब हम जाएंगे तो सो दिस इज विद द कनेक्टेड एंटीनास हियर। सो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ये एंटीना मैंने रिमूव कर लिया। अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अपना ये एंटेना अपने स्पेक्ट्रम एनालाइजर से, लुकिंग डाउनवर्ड या अपवर्ड। बहुत से लोग पूछते हैं ऐसे लगाना है या ऐसा लगाना है। कैसे भी लगाओ बात बराबर है, बिकॉज वर्टिकल पोलराइजेशन चाहे ऐसे या ऐसे दोनों सेम है। सो मैं अगर यहाँ पे लगा दूं तो देखो जरा पावर कितना मिलता है। वो जब एंटीना लगाया था तो इससे कम पावर था, बिकॉज ऑफ द रीजन -3 dB गेन। यहाँ पे आपको 0 dB गेन मिल रहा है एंड पावर इज -16। मैं हिल नहीं रहा हूँ बिकॉज ऑफ द रीजन, जैसे मैं हिलूंगा यहाँ से ये पावर वेरी करेगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ, देखो आप थोड़ा ये है ना। सो अभी मेरे सिग्नल जनरेटर सॉरी स्पेक्ट्रम एनालाइजर पे 16 dB पावर है विद ओमनी एंटीना। अब मैं इसको रिमूव करके लेट मी ट्राई अगर यहाँ पे डायरेक्शनल एंटीना काम करता है तो। अब बिकॉज ऑफ द रीजन, क्योंकि ओके बट वेयर इज माई ट्रांसमीटर? So how much power was there? It's -15 dBm और 16 -16 dBm। और मुझे नहीं पता कि मेरा ट्रांसमीटर कहाँ है। लेट मी लुक फॉर दैट। Yes, it's still here. So let me put it here. Okay. So now you can see a lot of things happening here. Now मैंने इसको थोड़ा दूर कर दिया है and so with each and every movement of my body you can see आगे पीछे होता है। -34 है। मैं ट्रांसमीटर को बिल्कुल हिलाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ एंटेना चेंज कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। सो मैं अब एंटेना चेंज कर रहा हूँ और शायद यहाँ पे काम कर जाए, बिकॉज आप देख सकते हो इट्स -23। डायरेक्शनल एंटेना और मुझसे डायरेक्शन दिया हुआ है। सो ये तकरीबन -20, आई थिंक -21 आ रहा है। -21 एंड with the Omni you have huge losses. With Omni you have -30, -29, -28, something like that. So वो 4 dB जो बोलते हैं कभी कभी, depends on the frequency also and also the reflections. A lot of reflections is happening, but anyway idea is that with directional antenna you will always have that passive gain 4-5 dB मिलता ही मिलता है उसको। and that is the reason why I always say अगर इंडोर भी हैं तो यूज दैट डायरेक्शनल एंटेना, डोंट वरी अबाउट द रिफ्लेक्शंस। इंटरफेरेंस को भी दूर करता है वो। सो दैट इज द रीजन। So let me go back to my presentation here and switch this transmitter off. अदरवाइज मैं अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता रहूंगा।
Okay. So, so what is diversity? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्यों दो एंटेना? Why not only one antenna? Okay. So let me go through that. क्यों दो एंटेना? एक एंटेना से भी काम चल सकता है. So the simple reason is that suppose you have a transmitter and you have a receiver with just one antenna. एक ही एंटेना है आपके पास रिसीवर पे भी, जैसे एक कैमरा रिसीवर में होता है. लोग बोलते हैं ऐसा, हालांकि वहां भी डाइवर्सिटी होती है, वो फिर कभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे होती है, लाइक इन ईयर मॉनिटर में होती है. सो पहले जो आते थे, जो बहुत पहले आते थे इस तरह के छोटे रिसीवर्स, उनमें एक सिंगल एंटेना होता था. और बहुत पहले करीब तक 20 years बैक कुछ वायरलेस सिस्टम्स आते थे जिनमें सिंगल रिसीवर हुआ करता था. So what is that? If you have a single antenna receiver and transmitter, of course, एक ही transmitter हो सकता है, एक ही antenna हो सकता है transmitter पे. So direct signal received, okay, no problem, 0 dB, 0 degree जो phase होता है. Then there is a reflected signal, और वो भी एंटेना पे मिलता है जाके, वो आउट ऑफ फेज होता है, 180 डिग्री से. सो व्हेन दीज टू सिग्नल, जब दोनों सिग्नल मिलते हैं, फेज कैंसिलेशन होता है एंटेना पे, रिसीविंग एंटेना पे. सो ये प्रॉब्लम है. फेज कैंसिलेशन हो जाएगा, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा. तो इससे ओवरकम, इससे बाहर आने के लिए एक दूसरा एंटेना यूज करते हैं उसी रिसीवर में. और ये मान के अगर एक एंटेना पे फेज कैंसिलेशन है तो मे बी दूसरे एंटेना पे कुछ पावर होगी. क्यों, कैसे इंश्योर करते हैं कि दूसरे एंटेना पे कुछ पावर होगी? लेट अस हैव अ लुक एट द टू डाइवर्सिटी प्रिंसिपल्स. बहुत सारे डाइवर्सिटी प्रिंसिपल हैं दुनिया में, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स एंड नंबर ऑफ डाइवर्सिटी प्रिंसिपल्स. हम जो यूज करते हैं हम उसकी बात करते हैं. सिंपल डाइवर्सिटी क्या है, जो अब कहीं नहीं यूज होता है? यस, मे बी इन ईयर मॉनिटर में जो बेल्ट पैक होते हैं उनमें, दैट इज नॉट ए ट्रू डाइवर्सिटी. सिंपल डाइवर्सिटी होता क्या है उसमें? सो सिंपल डाइवर्सिटी में पूरा सर्किटरी एक होता है, आरएफ इनपुट, फ्रंट एंड, सब कुछ फ्रंट एंड से शुरू होता है. फ्रंट एंड के पास ही जो फिल्टर्स होते हैं वहां पे एक स्विच लगा होता है, आरएफ लेबल कंट्रोल यूनिट. वो स्विचिंग करता रहता है, हमेशा स्विचिंग करता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पावर, कि कहाँ पे क्या पावर है. और जो भी पावर उसको मिलते हैं, एंड दैट इज टेकन बाय द रिसीवर फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड, या प्रोसेसिंग के लिए वो ले लेता है. सिंपल डाइवर्सिटी में इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या, ये स्विचिंग करता रहता है. तो ये पता नहीं होता है कि अगर इसने स्विच किया तो पहले वाले पर अगर नहीं होगा पावर तो दूसरे वाले पे, और दूसरे वाले पे भी नहीं होगा, फिर क्या होगा? फिर ड्रॉप आउट्स आएंगे. तो ये उतना इफेक्टिव नहीं होता है जैसे ट्रू डाइवर्सिटी होता है. सो ट्रू डाइवर्सिटी में क्या होता है, एक ऑडियो स्विच होता है, वहां पे रिसीवर के अंदर दो अलग अलग सर्किटरीज होती हैं. तो एक्चुअली एक रिसीवर के अंदर हमें दो रिसीवर मिलता है उसमें. सो एक रिसीवर नहीं होता है, वो पाथ होते हैं, एक रिसीवर का इनपुट, दूसरे रिसीवर का इनपुट, और पूरी प्रोसेसिंग होती है, आरएफ की डिमॉड्यूलेशन, सब कुछ होता है उसके अंदर. सो जब डिमॉड्यूलेशन वगैरह हो जाता है, जहाँ पे वो ऑडियो स्विच के ऊपर मिलता है जो ऑडियो, वो ऑडियो आरएसएसआई सिग्नल देखता है कि कौन सा स्ट्रांग है. आरएसएसआई सिग्नल, सिग्नल जिससे आपको डिस्प्ले पे दिखाई देता है सब कुछ, वो देखता है कि कौन सा स्ट्रांग है, और जो भी एंटीना स्ट्रांग होता है उस पूरे कंप्लीट पाथ को वो कंसिडर करता है आगे आउटपुट देने के लिए. सो ये फैक्ट होता है इसमें. तो जिसके ऊपर भी ज्यादा सिग्नल होगा, ये स्विच वहां पे चला जाएगा. सो स्विच करता रहेगा, और जो मैक्सिमम पावर होगा वो आप प्रोसेसिंग के लिए लेते हैं. सो ऐसे ट्रू डाइवर्सिटी काम करती है. डाइवर्सिटी बहुत जरूरी है किसी भी सिस्टम की हेल्थ के लिए, और ये हमेशा विजिबल होते रहने चाहिए. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज आपके पास एक रिसीवर है और एक ट्रांसमीटर. अगर आप देखेंगे इसको प्री पैटर्न, कि रिसीवर एंटीना ए पे और एंटीना बी पे आप जोन में वेन्यू पे चल रहे हैं, और आपको कैसे कैसे सिग्नल मिलता है. मे बी एंटीना ए पे कहीं पे बहुत अच्छा सिग्नल मिल रहा है, एंटीना बी पे बहुत कम मिल रहा है, डिपेंडिंग ऑन द लाइन ऑफ साइट एंड ऑल्सो द एंटीना प्लेसमेंट, और बहुत सारे फैक्टर्स. डिपेंडिंग ऑन दैट आपको एंटीना ए और बी पे कुछ इस तरह से सिग्नल मिलते जा रहे हैं. सिस्टम क्या करेगा, तो बेस्ड सिग्नल इसको जिस एंटीना से मिलेगा वो स्विच करता रहेगा और सिर्फ उस सिग्नल को लेगा. अगर देखेंगे यहाँ पे, तो अगर सिर्फ ये एक एंटीना पे स्टिक रहे तो हो सकता है कि एंटीना बी जैसे है, समटाइम्स ये टच कर रहा है आपके लोअर
पोर्शन को या स्क्वेल्च लेवल को, वहां पे ये म्यूट हो जाए, आपको कुछ ना दे, ड्रॉप आउट मिले आपको, फिर आप कहेंगे कि रेंज नहीं मिल रही, ड्रॉप आउट मिल रहा है। तो ये सिस्टम क्या करता है, रिसीवर बेस्ड सिग्नल ले लेता है। बेस्ड सिग्नल कहां से लेता है, तो इसको जो ऊपर मिल रहा है सिग्नल, ये बिल्कुल उसको ले लेता है। तो जो पूरी 30 डीबी की रेंज है, सपोज 30 डीबी रेंज है, डायनामिक रेंज है, उसमें आपको जो एक्चुअल क्रक्स मिल रहा है वो 10 डीबी में मिल रहा है। उस 10 डीबी में जब आपका डायनामिक रेंज अच्छा होगा, ऊपर होगा, तो आपको ऑडियो डायनामिक्स बहुत अच्छा मिलेगा, यानी क्लियर ऑडियो मिलेगी। अगर ये आरएफ, यानी जैसे आप दूर जाना शुरू कर देते हैं कभी रिसीवर से, क्या होता है, आरएफ कटता है, और कटता है तो साउंड भी बड़ी गंदी आती है। आप बोलेंगे उसमें कुछ इस तरह से नॉइज उसमें इंट्रोड्यूस होते रहते हैं। क्यों होता है, तो ऑडियो डायनामिक्स भी यहाँ पे कम हो जाते हैं, ऑडियो इंटेलिजिबिलिटी कम हो जाती है। ये तो डायनामिक रेंज की बात है जो हम करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। बट यहाँ पे एक बात और बता दूं, डिजिटल 6000 या डिजिटल सिस्टम में हमारे जो ब्यूटी है वो ये है कि वो आपको कम से कम डायनामिक रेंज पे भी 100% नीट एंड क्लीन ऑडियो देता है। इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करने वाले हैं उनसे, ठीक है, ओके। डाइवर्सिटी हायर द एंटेना सिग्नल्स बेटर साउंड, डेफिनेटली जितना एंटेना सिग्नल जितना अच्छा होगा, डायनामिक रेंज जितना ऊपर होगा, हायर होगा, उतना साउंड क्वालिटी आपको अच्छा मिलेगा। टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। प्लेस एंटेना इन डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट, तो आपको एंटेना को ऐसे प्लेस करना है, हाइट पे प्लेस करना है, डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट हो, कुछ आसपास ना हो उसके, और आपके परफॉर्मर के बीच में, जो आपका टैलेंट है उसके बीच में कोई इंटरप्शन नहीं आना चाहिए एज सच। तो उसको डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट मिले, तो हाइट पे सबसे अच्छा तरीका है, हाइट पे। स्पेस एंटीना ग्रेटर देन अ क्वार्टर वेव अपार्ट, मतलब हो सकता है 15 सेंटीमीटर में आप 600 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, बट इतना नहीं। फिर आपको परमिशन है कि आप 1 मीटर से लेके और 40 मीटर 50 मीटर तक कुछ भी कितना भी स्पेस कर सकते हैं। अगर बीच में मान लीजिए परफॉर्मेंस हो रही है, एक एंटीना इधर डाला, एक 40 मीटर इधर डाला, दोनों को ऐसे डायरेक्शन दिया, दोनों को स्टेज की तरफ, परफॉर्मेंस एरिया की तरफ, एंड यू आर डन। एक ही तरफ रखना है, 1 2 3 मीटर अपार्ट फोकस कर दिया। लोग पूछते हैं माइक्रोफोन एंटीना और इन ईयर मॉनिटर के एंटीना में कितना डिस्टेंस रखें। बहुत अच्छा होगा अगर 4 to 5 मीटर रखें, बहुत ही अच्छा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कभी कभी ब्लॉकिंग इफेक्ट काम में आता है, उसको हम देखने वाले हैं कैसे आता है, ब्लॉकिंग कैसे होती है। ओके, सो use directivity and polarization to your advantage. So omni based for indoor, forget that. चाहिए तो यूज कर लीजिए, I will say always go for directional antenna. Directional based for outdoor when rejection of unwanted signal is preferred. Outdoor में तो और कोई तरीका हो ही नहीं सकता, you have to move, we have to go with directional antennas outdoor में। एंटेना को परपेंडिकुलर या वी या वाई कॉन्फ़िगरेशन में, जैसे मैंने बोला, ऐसा शेप कर दें विदाउट एनी प्रॉब्लम, वो पोलराइजेशन इफेक्ट को अप टू सम एक्सटेंट वो केयर करेगा फॉर माइक्रोफोन्स। इन ईयर के लिए आपके पास एक ही एंटीना है तो आप नहीं कर सकते, आपके पास चॉइस नहीं है, सो यू हैव टू गो फॉर दिस एंटीना। इन ईयर इस एंटीना से करेंगे आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। सर्कुलरली पोलराइज्ड टू अवॉइड पोलराइजेशन इश्यूज। सो ये टिप्स एंड ट्रिक्स थे एंटेनास के। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। यस, एंटीना डायरेक्टिविटी इवन इंडोर्स में यूज करता हूँ बिकॉज ऑफ द नल पॉइंट। बाहर से अगर डिस्टर्बेंस भी आ रही है या साइड से भी आ रही है तो हमारे पास रिजेक्शन पॉइंट्स है वहां पे एंटेना के ऊपर, तो इंटरफेरेंस को रिजेक्ट करता है। कोएक्सियल केबल की बात करेंगे एंड आई थिंक वी आर वेरी क्लोज टू, yep, वेरी क्लोज। सो कोएक्सियल केबल, दुनिया में बहुत सारी कोएक्सियल केबल हैं। वी यूज 50 ओम केबल फॉर ऑडियो, मतलब ऑडियो के अंदर जो आरएफ होता है, आरएफ ऑडियो मॉड्यूलेटेड, ऑडियो से जो हम मॉड्यूलेट करके जो हम आरएफ भेजते हैं, हमारा सिस्टम काम करता है 50 ओम इम्पीडेंस पे। बहुत से लोग बोलते हैं कि वीडियो केबल यूज कर लें क्या, नो, दैट इज नॉट गुड टू हैव बिकॉज ऑफ द रीजन वीडियो केबल 75 ओम, ऑडियो केबल 50 ओम, इम्पीडेंस मिसमैच होता है, लॉसेस आपको पता नहीं कितने होंगे। काम तो वो भी करेगा, वायर है, काम करेगा, बट यू नेवर नो कि उसमें और क्या टेक्निकलिटीज आएंगे। सो इट्स बेटर नॉट टू यूज दैट वीडियो केबल। RG58 नॉर्मल केबल है, सब लोग बोलते हैं यार कम से कम वी गॉट रीड ऑफ दिस एंटेना, दिस
आप कहते हो कि इसको निकाल के और डस्टबिन में डाल दो, ये मेरा कहना है, आप डस्टबिन में मत डालो, इसको रखो अपने पास, बट यूज करो एक्सटर्नल एंटेना। तो जब आप कहते हैं कि यार ये एंटेना यूज नहीं करना है, एक्सटर्नल एंटेना यूज करना है, तो ठीक है ना, 5 मीटर 10 मीटर केबल तो अलाउ करोगे आप यूज कर सकें। यू हैव टू लुक एट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। ठीक है, कैसे क्या होता है केबल के अंदर, बहुत सारे केबल हैं। तो मैंने कैटलॉग पढ़ा था, और भी ये तो छोटा सा कैटलॉग है, उसका एक एक्सट्रैक्ट निकाला 50 ओम केबल का, बट मुझे लगा कि ये भी काम नहीं करेगा, तो आई हैव कस्टमाइज दिस फॉर यू। मैंने आपके लिए 2-3 रिकमेंडेशन रखे हैं, आप उसके साथ जाओ। ठीक है, और ये रिकमेंडेशन आती है हमारे एक्सपीरियंस से। टाइप्स ऑफ केबल, 50 ओम लॉस केबल है। लॉस कितना होता है हर 10 मीटर पे, मैंने 10 मीटर पे दिखाया ये लॉस। RG58 में 5 to 6 dB का लॉस होगा। आप फ्रीक्वेंसी 600 मेगाहर्ट्ज ले लो या 500 मेगाहर्ट्ज ले लो। 500 लेते हो तो मे बी 5 dB का लॉस है, फिर 600 लेते हो सकता है 5.5 का लॉस होगा, आधा डीबी बढ़ जाए। 700 पे हो सकता है 6 dB का लॉस दे दे। तो मोटा मोटा ये अपने यूएचएफ रेंज में जहाँ पे हम प्ले करते हैं, जहाँ पे वहाँ पे ये 5 to 6 dB का लॉस देता है। टू बी ऑन सेफर साइड मैं 5.5 कैलकुलेट कर लेता हूँ अपने लिए, किसी भी फ्रीक्वेंसी पे लेट अस कैलकुलेट 5.5 और 6। ओके, RG213 केबल है, या जिसको GZL 5000 भी बोलते हैं, ये थोड़ी सी हार्ड केबल होती है। यहाँ पे एक सॉरी, लोगों का कंसर्न भी होता है, दे कंप्लेन अबाउट ब्रेकिंग डाउन द एंटेना कनेक्टर एंड दे कीप ऑन स्पेंडिंग मनी ऑन सर्विस थिंग्स। फिर सर्विस में जाते हैं, सर्विस बोलता है कि ये कनेक्टर इतना रिपेयर करना, एंड ट्रस्ट मी, repairing that antenna connector is a very very difficult task, because उसको फिर से ट्यून करना होता है। This is not about the repairing antenna and just the resoldering, taking out and resoldering. इसकी बैंडविड्थ चेंज हो सकती है, कुछ भी चेंज हो सकता है, पैरामीटर्स चेंज हो सकते हैं एंटेनास के। So it's a very very tedious job. Please ensure that you do not break your connector of the antenna, और उसको आपको सर्विस में ना ले जाना पड़े, इसको इंश्योर करिए। ठीक है, तो उसको कैसे कर सकते हैं इंश्योर? या तो आप RG58 केबल यूज कर रहे हैं तो करिए, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी। You have to use LMR 400 cable sometimes, which is quite hard, like this one. This is LMR 400 cable, and with this big connector, very hard connector, बहुत hard connector है। लोग बोलते हैं कि सर अगर इसके पीछे, इस एंटीना के पीछे हमने इसको डायरेक्ट लगा दिया और केबल अपने वेट से ही उसके कनेक्टर को तोड़ डालेगा। मे बी, तरीका क्या है इसका? बहुत अच्छा तरीका है। केबल के साथ जब भी आप माउंट करते हैं ऐसे हार्ड केबल, 213 हो या ये केबल हो, तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है करने का। गेट ए पेयर ऑफ दिस मेल फीमेल RG58 स्मॉल केबल। इसको पहले आप एंटीना में लगाइए और इसको कहीं से बांध देना है, रॉड से बांध देना है या फिक्स कर देना है। अब हार्ड केबल आप इसमें लगाएंगे, आपका इक्विपमेंट हमेशा सेफ रहेगा। या आपका कंबाइनर है, कंबाइनर पे आप ये छोटा केबल लगा दीजिए, छोटा केबल लगा के एक्सटेंशन लगा के, एंड देन यू कनेक्ट दैट। हम ब्रॉडकास्ट में ऐसे ही काम करते हैं। ब्रॉडकास्ट में बहुत सारा एरिया होता है, हमें कवर करना होता है, सेक्शन ए, सेक्शन न्यूज रूम, क्रोमा रूम, और पता नहीं क्या क्या होता है उनका, देन स्टूडियो है। सारे जगह से हम एंटेना डिस्ट्रीब्यूशन से एंटेनाज लाते हैं, वो LMR 400 यूज करने पड़ते हैं, और उसके बाद से छोटा केबल यूज करते हैं हम अपने कंबाइनर के लिए, एंड देन वी कनेक्ट एंटेना देयर। तो ये बहुत अच्छा है। ब्रेक होगा कभी तो ये ब्रेक होगा, इजिली अवेलेबल। This is Sennheiser model AM2. Okay, this is available from us. और ये पेयर में आता है, एक साथ 2 केबल आती है। ठीक है, सो आप जब भी AM2 ऑर्डर करते हो तो उसके साथ आपको ये 2 केबल मिलती है, एक एंटेना के लिए और एक कंबाइनर के लिए, इन ईयर के सेंस में। अदरवाइज आप बहुत सारे लेके रख सकते हो, जैसा भी यूज हो। अपने यहाँ भी अगर बना सकते हो तो आप बनवा सकते हो, बट इट शुड बी रॉबस्ट। ग्रेट। सो आई वॉज लुकिंग एट द प्रैक्टिकलिटी। लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं कि सर ये तो बहुत हार्ड होता है, इसको बार बार ले जाना, ले आना, यस डिफिकल्ट, आई नो। ठीक है, 20 मीटर्स की लेंथ अब रख लो, 20 मीटर्स की 2-3 लेंथ रख लो, 2 माइक्रोफोन के लिए और 1 इन ईयर के लिए, एंड यू आर डन। 20 मीटर में
2 dB लॉस होगा, परमिसेबल। अप टू 3 dB, 30 मीटर परमिसेबल। सो अगर इन ईयर में भी एंटीना इंस्टॉल करना है, सर्कुलरली पोलराइज्ड एंटीना, कनेक्ट दिस केबल 10 मीटर, 10, 20 मीटर, 30 मीटर, नॉट ए बिग डील, कोई प्रॉब्लम नहीं है 30 मीटर तक। और वही छोटी केबल, एडाप्टर केबल लेके ऐड कर दीजिए। उसमें कितना लॉस होगा लोग पूछते हैं, इसमें भी तो लॉस होगा, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। आप और भी देख सकते हैं डिजिटल 6000 में या इसमें एवोल्यूशन सीरीज में ASA 214 या ये स्प्लिटर्स वगैरह लगाते हैं, वहां आपको केबल मिलती है। इस केबल में नेग्लिजिबल लॉस होता है, बहुत कम लॉस होता है। सो यू कैन यूज दिस केबल विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है। सो ये केबल के बारे में, ये LMR 400 है। हर एक 10 मीटर में 1 dB का लॉस है। अप टू 3 मीटर इज परमिसेबल फॉर एनी सिस्टम। क्योंकि 3 dB आप जब पावर लूज करते हो तो इसका मतलब है कि नॉइज फ्लोर भी आप 3 dB से लूज करते हो, यानी कि दबाते हो, एटेन्यूएट करते हो, एंड दैट इज गुड टू हैव। ये रीजन मैं हमेशा बोलता हूँ, अप टू 30 मीटर ऑफ LMR 400 केबल एंड यू डन। कम रख सकते हैं तो आप कम रख लो, 30 मीटर, 10 मीटर, इट्स हार्डली, मैं बहुत इजीली घुमा रहा हूँ, तो 20 मीटर, 30 मीटर भी उतना भारी नहीं होगा। सो अगर वो ज़्यादा भारी नहीं है तो इसको 2-3 इस तरह की केबल लेके आप कहीं भी जा सकते हो वेन्यू पे, इवन इन लाइव सिनेरियो। ग्रेट। RG213 भी है 2.5 dB, थोड़ा सा इसके और इसके बीच की केबल है। ये RG58 है, GZL1019 जो हमारा मॉडल है, 5 मीटर वाला है, एंड दिस वन LMR 400, ये बेल्डन 9913 है। ठीक है। सो इसके दोनों के बीच का होता है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं होता है और बहुत ज्यादा LMR 400 की तरह हार्ड भी नहीं होता है। ठीक है। सो ये केबल भी एक अच्छा कॉम्प्रोमाइज है, एक अच्छा ऑप्शन है जाने के लिए। सो यूज द बेस्ट लो लॉस केबल यू कैन अफोर्ड। हमेशा अच्छा है कि लो लॉस केबल हो, अदर देन कि आप बूस्टर यूज करेंगे। लॉसेस कैलकुलेट करें, ऑलवेज एम्पलीफाई एट द सोर्स। हमेशा बूस्टर अगर तो रखना पड़ता है, हालांकि मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूं इसको, फिर भी आपको दिखा देता हूं, मैं इसको रखता नहीं हूं। तो ये डिफेक्टिव यूनिट है जो मेरे पास कभी आया था सर्विस सेंटर में, और उसको मैंने अपने पास रख लिया हुआ है। सो ये डिफेक्टिव है, ई बैंड में है। आपको पता है कि ई बैंड में हम कुछ ऑपरेट नहीं करते हैं इंडिया के अंदर। सो ई बैंड में बहुत पुराना, ये पुराने टाइम का ये है, कुछ AV3 ई बैंड में 823 से 865 ये बैंड स्पेसिफिक होता है। तो एवोल्यूशन सीरीज के लिए ये बहुत ठीक होता है, इन केस यू नीड टू हैव बूस्टर अगर चाहिए। अदरवाइज मैं इसको कभी प्रेफर नहीं करता हूँ, लो लॉस केबल यूज करिए, क्योंकि इसको लगाने से नॉइज फ्लोर एब्रप्टली बहुत तेज बढ़ता है और प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे लिए। ऑलवेज एम्पलीफाई एट द सोर्स। अगर बूस्टर लगाना ही है तो जस्ट एंटेना के पास लगाना है, कभी भी रैक के मुंह में नहीं डालना है, रैक में नहीं लगाना है। रैक में लगाने का मतलब क्या है कि आप रिसीवर के फ्रंट एंड को इतना ओवरलोड कर रहे हो कि नॉइज फ्लोर, आपने देखा था मेरे स्पेक्ट्रम एनालाइजर में, जैसे ही मैं ट्रांसमीटर पास ले गया, सिर्फ एक ट्रांसमीटर है, पास ले गया और उसकी नॉइज फ्लोर उसके आसपास की सारी उठ के खड़ी हो गई, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है ना। दिस इज लाइक फीडिंग। एक भूखे आदमी को ना इतना थाली भर के खाना बोलो एक बार में मुंह में डालना है, कैसा करेगा वो? ही विल रेजिस्ट, अपोज करेगा, वो नहीं खा सकता, ब्लॉक हो जाएगा, फिर वो बोल देगा खाना ही नहीं है। इसको ब्लॉकिंग बोलते हैं। ठीक है। सो ये ब्लॉकिंग इफेक्ट भी आता है RF के अंदर। नेवर ओवर एम्पलीफाई, 0 dB इज अवर गोल। मैं कहता हूं -3 dB इज माई गोल, क्योंकि मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं, घाट घाट का पानी पिया है, बहुत परेशान हूं। अब मैं कहता हूं 3 dB लॉस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी, बढ़िया है, गुड टू हैव, ग्रेट। चलते हैं आगे, देखते हैं केबल के बारे में। ये थोड़ा सा छोटा सा एक डिपिक्शन है जिसमें आपको केबल के लॉसेस बता सकता हूं मैं। Ecoplex 10 LMR 400 केबल, यहाँ मैंने लिया है 100 मीटर केबल। 100 मीटर केबल में अप टू 10 to 12 dB ऑफ लॉस होता है, यू कैन सी। RG213 में सेम लेंथ अगर 100 मीटर की लेता हूँ और फ्रीक्वेंसी है मेरी, जिस मेरा वीडियो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है मुझे, लेट मी गो मूव अ लिटिल हियर, ओके ओके। सो RG213 में
द सेम एट 600 मेगाहर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी मैंने सबकी सेम ली है लगभग 600 मेगाहर्ट्ज, आपको 25 डीबी का लॉस मिलता है, ओके 100 मीटर में। यानी 10 मीटर में आपको 2.5 डीबी का लॉस मिलता है, जैसा मैंने पहले बताया। 5 डीबी इन 10 मीटर, अगर आरजी 58 का लॉस है तो 100 मीटर में 50 डीबी का लॉस होगा। सो दिस इज हाउ यू नो अबाउट द केबल लॉसेस। तो आपको ये 3 केबल और 3 केबल के लॉसेस पता है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि अप टू 3 to 4 डीबी हम जा सकते हैं गेन में या लॉस में जा सकते हैं, तो आपको कितना लेंथ चाहिए केबल का। आरजी 58 में मैं अप टू 10 मीटर अलाउ करता हूँ, गो अप टू 10 मीटर इन सर्टेन केसेस जहां पे आपको रेंज बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। रेंज क्रिटिकल प्रॉब्लम है, रिस्ट्रिक्ट अप टू 5 मीटर, 3 डीबी लॉस होगा उसमें, यू आर गुड टू गो बिना किसी बूस्टर से। LMR 400 अप टू 30 मीटर, गुड टू गो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बूस्टर यूज नहीं करना है इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोस। ठीक है, ग्रेट। आते हैं, ये बहुत पुराने जमाने में हम यूज कर सकते थे, करते थे, अभी भी यूज करते हैं। कहाँ? इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन के लिए, या जहां पे हमें जरूरत होती है इसकी, और हमें नॉइज फ्लोर को किल करना होता है कुछ सर्टेन केसेस में, थिएटर्स वगैरह में, तभी यूज करते हैं। बट इफ यू लुक एट दिस, जैसे अगर 1:2 स्प्लिटर हो मेरे पास नहीं है, 4 डीबी लॉस, यानी कि आधा पावर तो लूज हो जाता है आउटपुट पे। 1:3 मेरे पास ये है, आप देख सकते हैं, एक इनपुट 3 आउटपुट, 1 इनपुट एंड 3 आउटपुट, थोड़ा सा मेरे ख्याल से, यस 1 इनपुट हियर, सॉरी हियर, एंड रेस्ट 3 आर द आउटपुट्स, या फिर 3 कंबाइनिंग एंड 1 आउटपुट फ्रॉम हियर। कंबाइनर यूज करो या स्प्लिटर यूज करो, क्या होगा इसमें? 7 डीबी का लॉस होगा। और अगर 1:4 हो इसकी तरीके का, तो क्या लॉस होगा? 1:4 होगा तो 8 to 10 डीबी लॉस होगा। तो कभी भी यूज नहीं करना है, ये पैसिव स्प्लिटर यूज करना ही नहीं है, कभी सोचना भी नहीं है। एक्टिव स्प्लिटर्स हैं, सो इसके यूज लिए केबल हम टू एटेन्यूएट और इसे आप एटेन्यूएट फॉलो कर द नॉइज सकते फ्लोर। हैं, आप ओके, इसे ऐसे लाइक कर तो इसके बारे सकते में हम हैं। बात नहीं करेंगे। रिसीवर इसमें सेंसिटिविटी इज द हमारे लास्ट सॉफ्टवेयर टॉपिक टूल्स वीडियोस पड़े for the रहते हैं। for the day, this and plucking, and then we conclude with the first chart जो हमने बिल्कुल शुरू में आपको दिखाया था कि एक माइक्रोफोन है, एक रिसीवर है, कैसे लिंक बजट कैलकुलेट करेंगे एंड कैसे ये जानेंगे कि हमारा रेंज परफेक्ट होना चाहिए। ओके, सो लेट अस हैव ए लुक एट द रिसीवर सेंसिटिविटी। रिसीवर सेंसिटिविटी क्या होती है? रिसीवर सेंसिटिविटी, इसमें लिखा है द एबिलिटी ऑफ अ रिसीवर टू आइडेंटिफाई एंड एम्पलीफाई सिग्नल एट द रिसीवर। सिंपल सी बात है, सेंसिटिविटी क्या होती है? आपके कान की सेंसिटिविटी क्या है? आप कितनी ऊंची आवाज सुन सकते हो। चूंकि मैंने पहले ही बताया था कि मेरे कान ऐसे हैं कि हो सकता है कि मेरी सुनने की पावर थोड़ी कम हो। एक छोटे बच्चे की, आप देखते होंगे कि हॉस्पिटल में भी जब पैदा होता है तो उसके सुनने का टेस्ट किया जाता है, कुछ फ्रीक्वेंसी भेज के, कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। आपने देखा होगा कि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका साउंड टेस्ट जरूर होता है हॉस्पिटल में, अदर टेस्ट के साथ साथ। तो वहां पे मैं एक बार डॉक्टर से पूछ रहा था कि आपको क्या लगता है कि इनकी सुनने की शक्ति क्या होती है? बोले बहुत लो से बहुत हाई तक होती है। उन्होंने इतना ही बोला। सो वी नो, कभी कभी बच्चा सोया जाता है घर में, अचानक से जग जाता है, हमें कुछ सुनाई नहीं देता, वो बच्चा फील करता है, सेंस करता है कि कोई लो फ्रिक्वेंसी रंबल की आवाज आई है कहीं दूर से, या कोई बहुत हाई फ्रिक्वेंसी कुछ बर्तन वर्तन गिरा है, कुछ तो हुआ है, या कोई कूदा है अपने बेड से कहीं किसी फ्लोर पे। हमें आवाज नहीं आएगी, वो बच्चा सुनता है, बिकॉज उसकी सेंसिटिविटी बड़ी अच्छी है, और चौंक के उठ जाता है, रोना शुरू करता है। अक्सर रात में ऐसा होता है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स है। तो सेंसिटिविटी जो होता है वो सुनने का पावर आपका है कि, या रिसीवर क्या सुन सकता है, क्या देख सकता है, क्या पावर उसको चाहिए जिसको वो डिकोड करके आपको सिग्नल दे दे ऑडियो आउटपुट पे, एंड दैट इज सेंसिटिविटी। सो रिसीवर की सेंसिटिविटी इसको डीबीएम में अगेन एक्सप्रेस करते हैं, डीबीएम चार्ट, और उसका चार्ट में आपको यहीं पे अब दिखाऊंगा कि डीबीएम वर्सेस कैसे होता है, क्या होता है, मिली वॉट और माइक्रो वॉट और माइक्रो वोल्ट, कैसे सिग्नल को वो उसमें कन्वर्ट करते हैं। रिसीवर सेंसिटिविटी लेवल टेल्स us the weakest signal that a receiver will be able to identify. So कितना सिग्नल ले सकता है? क्या लगता है आपको एवोल्यूशन सीरीज में कितना होता होगा? पहले ही बता दूं, सनहाइजर बहुत सेंसिटिव रिसीवर्स बनाती है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रिसीवर शायद कोई नहीं बनाता ऐसा।
बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने का एक खामियाजा भी है। लोग कंप्लेन करते हैं कि सर हम माइक्रोफोन जब ऑफ करते हैं ना तो उसमें से जू की आवाज आती है, ज़्ज़ करके ऐसी आवाज आती है रिसीवर से। दैट इज ड्यू टू द सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी बहुत नीचे है। उसको टेम करने के लिए फिर हम दूसरा एक तरीका लगाते हैं जिसको स्क्वेल्च बोलते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन है उसके लिए सारी बातें करेंगे। बट सेंसिटिव बहुत होता है। सो इसकी सेंसिटिविटी लगभग -98 होती है। इसका मतलब है कि लगभग 2.5 माइक्रोवोल्ट का सिग्नल अगर इसके एंटीना पे आए तो ये आपको, अगर क्वाइट इन्वायरमेंट हो और कोई नॉइज ना हो, नॉइज फ्लोर आसपास ना हो, तो ये आपको अप टू 60 टू 80 डीबी का भी आउटपुट दे सकता है ऑडियो का। ऑडियो डायनामिक्स आपको 60 टू 70 मिल सकता है इवन एट दिस लेवल ऑफ आरएफ। ये खूबसूरती है सनहाइजर के रिसीवर्स के। डिजिटल रिसीवर इट्स फार बियॉन्ड दैट। हो सकता है इसमें आपको बहुत अच्छा ऑडियो लेने के लिए आपको 28 डीबी डायनामिक रेंज की जरूरत है। मतलब -67 डीबीएम 100 माइक्रोवोल्ट बोलते हैं कि बहुत अच्छा सिग्नल है रिसीवर के लिए। रिसीवर की सेंसिटिविटी -67 डीबीएम अगर हो, बहुत अच्छा है। उतना पावर हमें एंटीना पे चाहिए, फिर आपको 80 90 100 डीबी का ऑडियो डायनामिक रेंज मिलता है। यानी कि मैं अगर ये मान लो कि 70 डीबी -70 डीबीएम का सिग्नल मेरे एवोल्यूशन सीरीज पे है तो मुझे 80 डीबी 100 डीबी तक का सिग्नल मिल रहा है। लेकिन डिजिटल 6000 में क्या है, सिर्फ 11 डीबी का जो आरएफ रेंज होता है उसके अंदर हमको फुल डायनामिक मिलता है 112 डीबी का ऑडियो का। और ये ब्यूटी है डिजिटल 6000 की। सो अब इसकी सेंसिटिविटी इवन -100 से भी अच्छी है, सो दोस्तों -102 ये तक। हमारा ट्वेल्थ जो वर्ष अदर फॉलो कर सकते रिसीवर्स या हैं और आप भी इस मैंने वर्ष की लाइव मैन्युफैक्चरर्स के डिस्कशन रिसीवर देखे वो सेंस भी इसमें नहीं कर लाइव पाते हैं कि फोटोज बाहर कोई वीडियोस डिस्टरबेंस है। प्रोवाइड किए इसको आप कनेक्ट करेंगे कि आपको हमेशा नीचे कुछ ना कुछ दिखाई देगा, कुछ ना कुछ दिखाई देगा, एंड दैट इज गुड टू हैव। उसको ये मत सोचिए कि वो आपको डिस्टरबेंस दिखा रहा है और डिस्टर्बिंग फ्रीक्वेंसी है, नहीं। किसी भी फ्रीक्वेंसी पे वो आपको नॉइज फ्लोर दिखा रहा है कि वो कितना नॉइज फ्लोर है, कितना नीचे तक। बट आप देख सकते हैं कि ओके नॉइज फ्लोर वहां पे। इवन विजुअलाइज करके बहुत सारा काम किया जा सकता है इस डिजिटल 6000 पे। ये इसकी ब्यूटी है। सो 1.8 माइक्रो वोल्ट का सिग्नल बहुत कम होता है। इवन अगर हम या आप, एनीबडी, जमीन पे अगर दौड़ना शुरू करें ना, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, नॉट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, रिमेंबर, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, जब दौड़ना शुरू करें तो हमारे बॉडी में इससे ज्यादा वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्लैनेट अर्थ। धरती के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, आप दौड़ रहे हैं उसके बीच में, तो मैग्नेट में जब भी कोई चीज मूव करती है, कंडक्टर, बॉडी कंडक्टर है, वो मूव करता है, उसके अंदर वोल्टेज क्रिएट होता है। नॉर्थ से साउथ क्यों नहीं? क्योंकि उसके पैरेलल आप नहीं दौड़ सकते। ईस्ट से वेस्ट दौड़ के आप देखिए, इससे ज्यादा वोल्टेज क्रिएट होता है। और इतना सिग्नल अगर हमारे रिसीवर को मिल जाता है तो रिसीवर फुल्ली ऑपरेशनल होता है एंड दिस कैन डिकोड एवरीथिंग। ग्रेट। हाँ, रिसीवर ब्लॉकिंग क्या होता है? रिसीवर ब्लॉकिंग है, लास्ट में मैं आपको शेयर करूंगा कि डीबीएम कन्वर्जन चार्ट भी क्या है। रिसीवर ब्लॉकिंग क्या होता है इसको दिखाता हूँ। और लेट मी शेयर दैट डीबीएम कन्वर्जन चार्ट, क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम नाउ ऑलरेडी। गॉड 123, सो एक डेढ़ घंटा ऑलरेडी, 2 घंटा हो गया। सो ओके बॉस, लेट मी शेयर माय डीबीएम कन्वर्जन चार्ट। जैसे आप अगर इसमें देखेंगे, मैंने ऑलरेडी कर रखा है डीबीएम कन्वर्जन चार्ट। मैं -67 पे जाता हूं जहां 100 माइक्रो वोल्ट का सिग्नल है। सो दिस इज गुड टू हैव। अच्छा है कि इतना सिग्नल हमारे रिसीवर पे हो, बहुत अच्छा काम करेगा। अगर ये कम भी जाता है तो आपको सिग्नल मिलता रहेगा। एनालॉग सिस्टम में ऑडियो डायनामिक कम होती रहेगी, ऑडियो में धीरे 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 नॉइज आनी शुरू हो जाएगी। डिजिटल सिस्टम में नॉइज नहीं आएगी। ये डिफरेंस है डिजिटल और एनालॉग में। सो यहाँ पे -97 3.2 माइक्रोवोल्ट, गुड टू गो। -97 एवोल्यूशन हमारा काम करता है वहां पे। इवन 3.2 माइक्रोवोल्ट सिग्नल को वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। 2.9 2.5 को -99 तक जा सकता है।
बट हमारा जो डिजिटल 6000 है -102 तक जा सकता है, दैट इज 1.8 माइक्रोवोल्ट सिग्नल, उसको भी वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। ओके, सो दिस इज हाउ सेंसिटिव आवर रिसीवर्स आर। और ये है कन्वर्जन चार्ट। तो जब भी मैं डीबी की बातें कर रहा था तो आई एम कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। सो आवर गोल इज लेट अस हैव 60 -67 dBm एट द रिसीवर एंटेना, जहां पे आपको बहुत अच्छा ऑडियो डायनामिक्स मिलता है। अब हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, वन सेकेंड, लेट मी से दैट again. After blocking, we will calculate the link budget in a nutshell. Receiver blocking क्या होती है? When any off-axis signal किसी भी रिसीवर के पास आ जाता है, तो वो डिजायर्ड सिग्नल को ना देख के किसको देखता है? ऑफ एक्सिस सिग्नल, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे यहाँ पे है, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ। जस्ट अगर ये डिस्टरबेंस बहुत दूर हो, मैं आपके लिए वांटेड सिग्नल हूं, मुझे आप देखना चाहते हो, आप देख सकते हो इस टाइम। बट क्या होगा अगर ये डिस्टरबेंस आपके बहुत पास आएगा, है ना? तो अभी भी आप मुझे देख सकते हो, लेकिन अगर ये बहुत पास हो गया, सॉरी थोड़ा सा आंखें आपकी, तो ये अगर आपके पास बहुत पास आ गया तो अब क्या होगा? डिजायर्ड सिग्नल, यानी कि मुझे आप देखना चाहते हो पर आप नहीं देख पाओगे। बट ये अगर दूर है, जो अनवांटेड चीज है, हो सकता है इसकी भी यूजेबिलिटी हो, मेरे साथ साथ आप लाइट भी देखना चाहते हैं, बट ये अगर दूर है क्योंकि उसकी प्रायोरिटी कम है, प्रायोरिटी मैं हूं, मुझे आप देखना चाहते हो और मेरे लिए डिजाइंड हो, मुझे देखना चाहते हो, आप नहीं देख पा रहे हो बिकॉज ऑफ द रीजन ये आपको ओवरलोड कर देता है। और फिर आप क्या करते हो? आप अपनी आंखें बंद कर लेते हो, यानी आप ब्लॉक कर देते हो। तो आंखें बंद करते ही ना आप इसे देख पा रहे हो ना मुझे देख पा रहे हो, तो ये इसको ब्लॉकिंग बोलते हैं। सो प्रेटी सिंपल टर्म में ब्लॉकिंग आपको समझाया। तो कभी भी जब ऑफ एक्सिस साउंड कभी आती है, ऑफ एक्सिस सिग्नल जब रिसीवर के पास आता है, तो क्या होता है? फ्रंट एंड एम्पलीफायर कंप्रेशन में चला जाता है, यानी कि ब्लॉक करना शुरू कर देता है। जब ये लोग बहुत ज्यादा पास होते हैं तब होता है, जब ट्रांसमीटर और रिसीवर बहुत पास होते हैं। आपने देखा था कि मैं जब ट्रांसमीटर लेके अपने स्पेक्ट्रम एनालाइजर पे जब बहुत पास आ गया तो क्या हुआ? नॉइज फ्लोर उठना शुरू हो गया। वो नॉइज फ्लोर इतना उठ जाएगा, इतना उठ जाएगा एक टाइम पे कि वो ब्लॉक कर देगा हर सारी चीजों को, वो देखना बंद कर देगा हमें। इसको ब्लॉकिंग बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? इसका इफेक्ट क्या होता है कि ये बाकी सारे सिग्नल को सप्रेस कर देता है, जो भी इसके अंदर आना चाहता है, म्यूट, कुछ नहीं मिलता फिर रिसीवर से। तो इसका क्या सबसे अच्छा तरीका है कि मेंटेन एटलीस्ट 4 मीटर डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो जब आप एंटीना को 2 मीटर हाइट पे डालते हैं तो ऑटोमेटिकली आप 4 मीटर दूर हो जाते हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कैसे आप दूर रख सकते हो। एंटीना को हाइट पे माउंट कर दिया, रिसीवर के पास आने से कुछ नहीं होगा फिर, ठीक है, एंटीना तो बाहर है। सो एंटीना से हमेशा ट्रांसमीटर की दूरी, डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है, दैट वुड बी 4 मीटर एज ए थंब रूल। सो एक आपको फोटो दिखाता हूँ, बहुत पुराना फोटो है ये। इसमें सानिया ट्वाइन के पीछे आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रांसमीटर रिसीवर लगे हुए हैं। अभी आप जस्ट सोचो थोड़ा सा कि यहाँ पे ट्रांसमीटर रिसीवर है, इनको मैंने अच्छे से कॉम्प्रोमाइज करके एक एंटीना ऊपर है तो दूसरा नीचे कर रखा है, और एक तरफ को माइक्रोफोन लगा रखे हैं तो इन ईयर को बिल्कुल दूसरे साइड में लगा रखा है ओरिएंटेशन देके। क्यों ऐसा कर रखा है? क्योंकि जो एक तो इंटरमॉड्यूलेशन क्रिएट कर रहे हैं ये आपस में, दूसरा जो आपका इन ईयर का जो एंटेना होता है, लाइक दिस वन एंटेना है, इन ईयर, है ना? सो जब इसका एंटेना है, इसको क्या चाहिए? वीक सिग्नल जो दूर से आ रही है, इन ईयर की वीक सिग्नल होगी, जो डेफिनेटली आर्टिस्ट के पास से स्टेज पे होगा तो स्टेज पे थोड़ा सा दूर होगा वो एंटेना से, उसको देखना चाहता है। लेकिन हो क्या रहा है, ये अगर इसकी बॉडी पे माउंट है एक जगह, इसके आसपास की जितनी स्ट्रांग सिग्नल है वो इसके बिल्कुल एंटेना पे आ रही है, यानी कि इसकी आंखों पे बहुत सारी लाइट आ रही है, तो क्या करेगा? आंखें बंद कर लेगा ये। तो ये ब्लॉकिंग होती है, इन ईयर मॉनिटर फिर सिग्नल नहीं मिलता उसको। ऐसा भी होता है कभी कभी जब आप एंटेना, जब आप माइक्रोफोन, ट्रांसमीटर और ये रिसीवर एक साथ माउंट कर देते हैं एक ही साइड में पीछे, क्या होता है? कभी कभी
ब्लॉकिंग हो जाती है, सिग्नल नहीं मिलता। फिर वो लोग आपके पास आते हैं कि सिग्नल नहीं मिल रहा। यू कीप ऑन लुकिंग फॉर द प्रॉब्लम एरियाज एंड ऑल। सबसे अच्छा है फिजिकल डिस्टेंसिंग, जैसा आज चल रहा है वैसा ही फिजिकली थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें हर जगह। ग्रेट। सो मल्टीपल वायरलेस यूनिट है, अलाउ मैक्सिमम स्पेस बिटवीन द एंटेनास। तो कैसे कर सकते हैं? एक अगर ऐसे माउंट किया है राइट हैंड साइड में एंटेना लुकिंग अपवर्ड, तो दूसरे साइड में बेल्ट पे आप इन ईयर मॉनिटर लगा सकते हैं लुकिंग डाउनवर्ड्स। कम से कम फिजिकल डिस्टेंस थोड़ी सी मेंटेन रहेगी, आपका ओवरलोड नहीं होगा, ब्लॉकिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी मॉनिटर रिसीवर के ऊपर। सो ये एक ये वीडियो है, मैं ये वीडियो को बहुत छोटा क्लिप है, आपको ऑडियो नहीं आएगी आई थिंक। आई डोंट थिंक यू विल बी हियर टू ऑडियो बट स्टिल। ओके, सो यहाँ पे फ्रंट में माइक्रोफोन है, फ्रंट में माइक्रोफोन है, तो इन ईयर मॉनिटर कहाँ होगा? डेफिनेटली पीछे होना चाहिए, क्योंकि बॉडी को बीच में लाना है। और बेस्ट पोजीशन क्या होती है कि हाइट भी देनी है उसको, तो हाइट कैसे देंगे? को यहां लगा के, यहां अगर लगा दिया तो हाइट भी मिल गई और 20 डीबी का आइसोलेशन इन बिटवीन आ गया, तो बॉडी बीच में आ गया मतलब 20 डीबी सप्रेस हो गया सिग्नल। तो सबसे बेस्ट तरीका ये भी है करने का। और जब भी आप एंटीना लगाओ तो वो मैंने ट्यूब दिखाई थी, अगर वो यूज कर सकते हैं, विजुअल अगर आपको प्रॉब्लम नहीं देता है तो बेटर टू यूज दैट दैट स्मॉल ट्यूब। Great. Allow 800 megahertz spacing between wireless in-ear monitor और transmitter और built back, जो हैंडल ट्रांसमीटर या बिल्ट बैक ट्रांसमीटर। तो माइक्रोफोन और इन ईयर के बीच में 8 मेगाहर्ट्ज की डिफरेंस फ्रीक्वेंसी में बना के रखनी है। एंड सर्टेन कंडीशन जब हम ये बोलते हैं तो हम बाय डिफॉल्ट जो सनहाइजर एज ए कंपनी हम केयर करते हैं वो ये करते हैं कि हम माइक्रोफोन और जो आपका इन ईयर है वो बैंड ही दो अलग अलग हमने रखा हुआ है। हम जब भी किसी को ऑफर करते हैं या किसी भी साउंड रेंटल कंपनी को ऑफर करते हैं तो हम बोलते हैं कि माइक्रोफोन ए बैंड में, लोअर बैंड में जाओ, एंड इन ईयर को थोड़ा सा हायर बैंड में ले जाओ, 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज। 700 तो अब शायद खत्म हो रहा है धीरे धीरे, तो मे बी 600 मेगाहर्ट्ज, इवन 700 मेगाहर्ट्ज। thousands and thousands of system are in working condition और काम करते रहेंगे, नो प्रॉब्लम। अब हमने फिर से बी बैंड यानी कि 600 को भी प्रमोट करना शुरू किया बाय द वे इन इंडिया। सो दिस इज हाउ हम लोग इसको फिजिकली ऐसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं कि हम उस बैंड में ही आपको सिस्टम नहीं देते हैं। लेकिन आपके पास साउंड रेंटल कंपनी के पास हंड्रेड्स ऑफ इन ईयर मॉनिटर पड़े हैं बहुत सारे बैंड्स में। सो जस्ट कीप इन माइंड कि अगर आप माइक्रोफोन एक बैंड में यूज कर रहे हैं तो मे बी इन ईयर आप दूसरे बैंड में यूज करें, या कम से कम सेम बैंड भी है तो आप मैनेज करें उसको 8 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा की डिस्टेंस। एंड रैक शुड बी सेपरेट, रैक दोनों के अलग अलग होने चाहिए हमेशा, एक रैक में कभी नहीं रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे रखा है स्टेक करके, आप देख सकते हैं कि इन ईयर मॉनिटर टॉप पे है, देन 4 चैनल की इन एवोल्यूशन सीरीज माइक्रोफोन है, उसके नीचे दो 4 चैनल की 6000 सीरीज है। तो सारा मैंने एक ही जगह स्टिक कर रखा है बिकॉज मेरे पास जगह की लिमिटेशन है एंड दिस इज जस्ट फॉर ट्रेनिंग पर्पज, तो मैंने इसलिए कर रखा है। पर एक्चुअल इवेंट में मैं कभी भी अलाउ नहीं करता ऐसे रखना। ओके, सो डिस्टेंस 5 मीटर से ज्यादा रखें दोनों के बीच में, नथिंग गुड लाइक दैट, बहुत अच्छा होता है। इन ईयर मॉनिटर का एंटीना या फिर माइक्रोफोन का एंटीना, आगे पीछे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आगे आपने माइक्रोफोन का रख दिया और पीछे से अगर आपने उसको इन ईयर मॉनिटर का फोकस कर दिया तो क्या होगा? ये रिसीवर भले 10 डीबी का रेडिएशन है बट फिर भी पीछे से उसको बहुत ज्यादा पावर मिल रही है इन ईयर मॉनिटर के, तो ब्लॉकिंग वहां पूरे रैक में हो सकती है ना? सो इसका ध्यान रखना है, आगे पीछे नहीं, एक प्लेन में रखना है स्प्लिट आउट करके। और बाकी बहुत से लोग कहते हैं कि 4 चैनल और 8 चैनल लगाते हैं, जी हमें तो 4 4 चैनल के बहुत सारे सिस्टम लगाने पड़ते हैं। और कभी कभी बोलते हैं कि यार इतने सारे एंटीना, 10 10 एंटीना हम कैसे लगाएं एक जगह। सो हम बात करेंगे शायद थर्ड में या सेकंड में, देखना पड़ेगा कैसे हम मल्टी चैनल एप्लीकेशन, शायद थर्ड में हम मल्टी जोन, पीयूष ने आई थिंक एजेंडा डिजाइन किया है तो शायद थर्ड में ले गए हैं। सो मल्टी जोन या फिर मल्टी चैनल ऑपरेशन के लिए कम से कम एंटेना का यूज करके हम कैसे इसको अचीव करते हैं, ठीक है? सो उसके बारे में हम बात करेंगे अपने थर्ड सेशन में। ओके, यहाँ कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस है, बूस्टर गेन और केबल लॉस
इतना ही होना चाहिए, बूस्टर गेन उतना ही होना चाहिए जितना केबल के अंदर लॉस हो। 0 dB टोटल गेन होना चाहिए, उससे भी कम। अगर मैं चाहूँ -3, हम फुली ओके। एंटीना के बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस रखें, गुड, अच्छा है। फिजिकली फिजिक्स बोलता है क्वार्टर वेव लेंथ, हम लोग बोलते हैं 1 मीटर रखो एटलीस्ट, अगर एक्सटर्नल एंटीना है। 1 मीटर से 50 मीटर कहीं भी चले जाओ, मेरे लिए सब ठीक है। हाइट 2 मीटर से ऊंचा, दोनों को सेम ऊपर नीचे थोड़ा अगर स्पेस करके माउंट करें, नथिंग गुड लाइक दैट ड्यू टू वेवलेंथ इश्यूज एंड ऑल। वेवलेंथ, वन वेवलेंथ ऊपर हो जाएगी, बहुत अच्छा होगा। हाँ, दो ट्रांसमीटर के बीच में 30 सेंटीमीटर, हम लोग देखेंगे क्यों 30 सेंटीमीटर नेक्स्ट सेशन में। 4 मीटर की डिस्टेंस ट्रांसमीटर से रिसीविंग एंटीना, बिकॉज ऑफ द लोड, ओवरलोड, ब्लॉकिंग, ओवरलोडिंग द रिसीवर, इसके लिए हमें 4 1 सेकेंड, ओके, सो ऐसे माउंट करना चाहिए। नाउ वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस सेशन। ये हमने सिस्टम डिजाइन किया था शुरू में, लिंक बजट। एक ट्रांसमीटर है हमारा, और ट्रांसमीटर फॉर्चुनेटली इट्स 17 dBm ट्रांसमीटर, 50 मिलीवॉट मतलब 17 dBm, आपने चार्ट में देखा होगा। ओके, आउटपुट कितना निकलेगा इससे? 14 dBm, 3 dB लेस। कैलकुलेशन के लिए हमने क्या बोला? 3 dB लेस। ओके, फ्री स्पेस पाथ लॉस कितना आएगा अगर 500 मेगाहर्ट्ज पे मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूं? दैट विल बी अराउंड 66 dBm। ओके, तो एंटीना पे कितना मिलेगा? -52 dBm। रिसीवर फ्रंट एंड को कितना चाहिए? -67 dBm। यानी कि हमारे पास अब भी रूम है कुछ और भी लॉस करने के लिए। 5 मीटर केबल लगा के हम लॉस कर सकते हैं, दैट इज एडमिसिबल, कोई बात नहीं, कर सकते हैं इस केस में, दैट इज नॉट ए बिग डील। 5 मीटर से ऊपर जाते हैं तो ठीक है, लेट अस थिंक अबाउट दैट। लो लॉस केबल ले गए, मे बी LMR 400 यूज कर लिया, 30 मीटर तक चले गए, ज्यादा डिस्टेंस चाहिए। अगर RG58 ही यूज करना है, 5 मीटर से ऊपर जाना है, 10 मीटर से ऊपर जाना है, तो लेट अस डू विथ 30 मीटर, नॉट लेस देन दैट। 30 मीटर करके, और केबल अगर आपको रोल करके कहीं रखना पड़ता है तो आप रख सकते हैं उसको, नॉट ए बिग डील। EMF की डील नहीं आती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इवन विद LMR 400 महंगा है, पैसे बचाना चाहते हैं लोग, एक एंटीना में अगर 10 मीटर लगाया, दूसरे में 5 मीटर लगा दिया, बहुत गलत है, वेरी वेरी मच रॉन्ग। क्यों गलत है? एक में आपने 10 मीटर लगाया, लॉस कितना हुआ? 1 dB। एक में 5 मीटर लगाया, लॉस कितना हुआ? 0.5 dB। LMR 400 की बात कर रहा हूं, 0.5 dB का डिफरेंस लॉस में आ गया। अब आप सोचो कि रिसीवर फ्रंट एंड पे एक में हमेशा 0.5 dB ज्यादा सिग्नल मिल रहा है दूसरे से, तो क्या करेगा? डाइवर्सिटी हमेशा वहां भी चिपक के रह जाएगा, वो दूसरा देखेगा ही नहीं, दूसरे एंटीना को वो कभी नहीं देखेगा। डाइवर्सिटी डिफीट करते ही आपको पता है क्या प्रॉब्लम आती है? ड्रॉप आउट की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, रेंज कट होना शुरू हो जाएगा। सो केबल लेंथ सेम होनी चाहिए, भले 10 मीटर ज्यादा केबल हो जाए आपके रैक के पास, उसको आप फोल्ड करके रख दो वहां, बट दोनों एंटीना में लेंथ सेम होनी चाहिए। इन-ईयर में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इन-ईयर में एक ही केबल होती है एक रैक के लिए, तो कितनी भी लेंथ हो, 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर चलेगा। LMR 400, RG58 5 मीटर से ज्यादा नहीं चलेगा। ग्रेट, सो वी नो अबाउट द केबल। सो इस केस में क्या है? -52 dBm, वी आर ऑन अ सेफर साइड, मस्त चलेगा 100 मीटर, कोई दिक्कत नहीं अगर एंटीना हमारा डायरेक्ट इन लाइन ऑफ साइट है। ग्रेट, सो कंसिडर एंटीना डी ट्यूनिंग। एंटीना डी ट्यूनिंग को कंसीडर करेंगे, अगर 20 dB इसमें ऐड कर देते हैं तो भी -72 dBm है, नो प्रॉब्लम। -67 बफर है हमारे पास 10-20 dB का, जाने का, जा सकते हैं। केबल लॉस मस्ट बी कंपेंसेटेड, ओवर बूस्ट नहीं करना, ओवर बूस्ट करते ही इंटर मॉड्यूलेशन की प्रॉब्लम आती है, जो हमारा नेक्स्ट सेशन है। बेटर रिजल्ट्स कंसीडर यूजिंग डायरेक्शनल और सर्कुलरली पोलराइज्ड एंटीना। यहाँ पे आप डायरेक्शनल एंटीना लगा के और इंप्रूव कर सकते हो, इंप्रूव हो जाएगा सिग्नल यहाँ, ठीक है। 4 dB का पैसिव गेन,
फिर आपको केबल में 10 मीटर की केबल RG58, अच्छा 5 मीटर तो बॉस ने बोला, 5 मीटर अपनी तरफ से कर देते हैं, एंटीना तो केयर कर रहा है, एंड दैट इज द रीजन मैंने क्यों बोला जब डायरेक्शनल एंटीना लगाते हैं 10 मीटर भी RG58 चलेगा मेरी तरफ से, नो प्रॉब्लम, एंजॉय।